Harry Potter learns Quidditch. What if one day you open your eyes and find that you have turned into a wizard? Wizard यानी जादूगर में आप बदल गए हो. Wizard. How would you feel? आपको कैसा लगेगा? The following extract is from Harry Potter and the Philosopher's Stone. ये J.K. Rowling ने लिखी गई है. The following extract from Harry Potter and the Philosopher's Stone shows how a young boy named Harry Potter discovers the joy of his magical world. The other creatures in this extract are from जो उसका दोस्त होता है, Harry's friends जैसे नेविल, हर्माइनी वगैरह, ओलिवर वुड जो उसको सिखाता है, and Harry's mentor. Harry had a lot of trouble keeping in his mind of his lessons since that day. हैरी को उसके लेसन्स को उसको रिमेंबर करने में बड़ी मुश्किल हुई थी उस दिन. It kept wandering up to the dormitory. डॉर्मेट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप समझ लो वही हमारा वेड़ा नहीं होता जहाँ पे हम सारे बैठ जाते हैं कि अपना काम करके लास्ट में लिखा हो गया. Large room with many beds, usually schools and colleges. Schools और कॉलेज में जहाँ पे वो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं वहाँ पे बेड्स वगैरह होते हैं ना, वैसा. Where his new broomstick यानी जादू की छड़ी, जादू की झाड़ू was lying under his bed, जो उसके बेड के नीचे थी, और straying off to the Quidditch pitch. Quidditch pitch एक जगह का नाम है जहाँ पे Quidditch खेली जाती है. Where he had been learning to play that night. वो Quidditch वहाँ पे खेलना सीख रहा था, यानी वो उतना अच्छा प्लेयर भी नहीं था. The bottled his dinner, यानी उसने बड़ी जल्दी खाना खाया. Bottled ate his dinner quickly. उसने जल्दी खाना खा लिया जैसे एक बार में अंदर. That evening, without noticing what he was eating, they rushed upstairs with Ron to unwrap the Nimbus 2000. At last, Nimbus 2000 एक broomstick का नाम है, जादुई झाड़ू जैसे मैंने आपको बताया था. Wow, Ron sighed as the broomstick rolled onto Harry's bedspread. Ron जो उसका दोस्त है उसने कहा वाओ. Even Harry, who knew nothing about the different rooms, thought it looked wonderful. हैरी को अभी मैजिकल वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसको डिफरेंट टाइप्स की ब्रूमस्टिक्स के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो उसको अच्छी लग रही थी. He thought it was wonderful, sleek and shiny, with a mahogany handle, a reddish brown timber समझ लो एक मेटल. Mahogany handle. It had a long tail of neat. उसकी टेल जो थी वो नीट ही थी, straight wings, and Nimbus 2000 written in gold near the top. उस पे लिखा हुआ था Nimbus 2000. As 7 o'clock drew nearer, Harry left the castle, set off towards the Quidditch pitch in the dusk. He had never been inside the stadium before. हैरी स्कूल में आया था, उसको वो अभी आया था, और उसकी फर्स्ट फ्लाइंग क्लास में उसको क्विडिच के लिए सिलेक्ट कर लिया गया. वो 200 ओवर सेंचुरी था. Hundreds of seats were raised in the stands around the pitch so that the spectators were high enough to see what was going on. क्विडिच वैसी हवा में खेली जाती है तो फिर सीट्स भी ऊंची थी ताकि देख सके लोग क्या चल रहा है क्विडिच में. At either end of the pitch
was three golden poles with hoops on the end. hoops होते हैं ऐसे जिसमें क्वैफल को डाला जाता है. क्वैफल समझ लो जैसे आप फुटबॉल को गोल के पास लेके जाते हैं, ये पिच के पास लेके जाते हैं. They reminded Harry of the little plastic sticks. उसको little plastic sticks की याद आती थी जो मगल चिल्ड्रन जो होते हैं वो जैसे मगल चिल्ड्रन जाने वो नॉन मैजिक पेरेंट्स थे. उनको मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता था. Blew bubbles through except that they were 50 feet high. Too eager to fly again. वो सिर्फ एक बार उड़ा था इसलिए उसको और जल्दी हो रही थी कि मैं उड़ूं, आसमान को छूं. Harry mounted his broomstick and kicked off from the ground. वो अपनी broomstick पे चढ़ा, माउंट यानी चढ़ना, और वो उड़ गया. What a feeling! He swooped in and out of the goalpost and then speed up down वो उड़ता रहा. Swooped in and out, the flew quickly and suddenly downwards. जब क्विडिश की ओपनिंग होती है तब ऐसे ही करते हैं. The Nimbus 2000 turned whenever he wanted at his lightest touch. जैसे हम अपने आप को मोड़ते हैं अपनी ब्रूमस्टिक को मोड़ने के लिए, तो फिर उसके लाइटेस्ट टच पे वो टर्न हो जाती थी. हे पॉटर कम डाउन. ऑलिवर वुड जो उससे सबसे पहले मिला था क्विडिच, जब मैगोनिगल ने उसे देखा था उड़ते हुए तो फिर वो ऑलिवर वुड के पास लेके गई थी. ऑलिवर वुड हैड अराइव्ड. वो आ गया था यानी वो टीम का कैप्टन था उस वक्त. ही वॉज कैरिंग अ लार्ज वुडन क्रेट यानी अभी हम देखते हैं क्या होता है. अ बॉक्स यूजुअली मेड ऑफ वुड. उसमें वुड का एक बॉक्स था. क्रेट वुड का एक बॉक्स. अंडर इज उसके बाजू के साइड. हैरी लैंडेड नेक्स्ट टू. वो नेक्स्ट साइड उतर गया. वेरी नाइस सेड वुड. ऑलिवर वुड यानी हिज आइज ग्लिंटिंग यानी स्पार्कलिंग. उसके आई स्पार्कलिंग. आई सी व्हाट मैगोनिगल मेंट. मैगोनिगल उनकी एक प्रोफेसर थी जो ट्रांसफिगरेशन की क्लास टीचर थी. वहाँ पे वो क्लास टीचर नहीं समझ लो, प्रोफेसर होगी ट्रांसफिगरेशन की. यू रियली आर ए नेचुरल. आई मस्ट नॉट. आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू द रूल्स दिस इवनिंग. देन वी विल बी जॉइनिंग टीम प्रैक्टिस 3 times a week. अभी वो सिर्फ उसको रूल्स बताएगा इस समय. देन यू विल बी जॉइनिंग टीम. वो टीम को ज्वाइन करेगा. जो टीम प्रैक्टिस होती है वो 3 times in a week. He opened the crate. Inside were 4 different sized balls. 4 तरह की different balls थी इसमें. Right, said Wood. Now Quidditch is easy enough to understand. And even if it is not easy to play, there are 7 players on each side. एक टीम में 7 प्लेयर्स होंगे. 3 of them are called chasers. वो चेस करते हैं, वो गोल करने की कोशिश करते हैं. 3 chasers, Harry repeated as Wood take out a bright red ball about the size of a football. This ball is the quaffle. जो मैंने अभी नाम लिया था क्वैफल को उन हूप्स में डालते हैं.
क्वैफल। ये चेजर्स इस क्वैफल को हूप्स में डालते हैं। The chasers throw the quaffle to each other and try to get it through one of the hoops. Hoops मैंने अभी आपको बताया था ना, hoops वो उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं। समझ लो ऐसे सा होता है एक साइड पे क्विडिच। टू स्कोर अ गोल, मैंने बताया ना वो गोल की तरह होता है। 10 points every time the quaffle goes through one of the hoops. Follow me, उसने कहा मेरे पीछे चलो। और 10 points होते हैं अगर क्वाफल गोल हूप्स में चले जाती है और एक गोल होता है तो 10 points होता है। द चेजर्स थ्रो द क्वाफल एंड पुट इट थ्रू द हूप्स टू स्कोर। हैरी रिपीटेड रिसाइटेड, वो देख रहा था कि उसे सुन रहा है या नहीं सुन रहा, तो हैरी को उसके पीछे रिपीट करना पड़ गया था। So that's sort of like basketball on broomsticks with 6 hoops, isn't it? जैसे उसने कहा बास्केटबॉल जैसे, लेकिन वो बोलता बहुत बास्केटबॉल क्या होता है, क्योंकि वो एक मैजिकल वर्ड थी, उसमें क्विडिच था बास्केटबॉल में। Never mind, said Harry quickly. Now there's another player on each side who's called the keeper. कीपर जो हुप्स को डिफेंड करता है। ऐसा तो होगा नहीं कि हम यहाँ पे हुप्स में डाल दें और कोई हमें रोके ना। अब आता है कीपर। कीपर था ओलिवर वुड। वो बोलता ग्रिफिंडोर के लिए मैं हूँ कीपर। I have to fly around our hoops to stop the other team from scoring. वो हूप्स के आसपास घूमता है ताकि वो स्कोर ना कर पाए। 3 chasers, 1 keeper, said Harry. उसने रिपीट किया 3 chasers होते हैं, एक कीपर होता है। Who was determined to remember it all. वो क्विडिच के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसलिए वो सब कुछ याद करना चाहता था। And they play with the quaffle. Okay, God. So what are they for? तो वो होता क्या है? He pointed at the 3 balls left inside the box. I will show you now. वो पूछता है कि ये 3 बॉल्स जो रखी हुई हैं वो है किस लिए? क्वैफल तो ठीक है, जो चारों में से एक थी, बाकी की 3 का क्या करना है? Take this. He handed a small club. Club मतलब एक बैट, a bit like a rounder's bat. अब मैंने बताया था ना बैट जैसा, देखो क्लब है। Here a heavy stick with one end thicker than the other. बैट जैसे। Rounders, a bat and a ball game like cricket. वो क्रिकेट की तरह। I am going to show you what the bulgers do. Bulgers यानी जो, ये तो होगा नहीं कि कीपर डिफेंड करेगा और चेजर्स डालेंगे, कोई होगा तो सही ना, क्योंकि 7 प्लेयर्स हैं। वो 2 अब आते बल्जर्स जो 2 हैवी सी बॉल्स को वो बैट टाइप से क्लब से मारते हैं और वो उनसे बचना होता है चेजर्स और कीपर्स को। He shows Harry 2 identical balls, jet black and slightly smaller than the red quaffle. वो क्वाफल से छोटी थी वो क्लब से जिसको मारते हैं। Harry noticed that they seemed to be straining to escape the straps holding them inside the box. वो एक बॉक्स के अंदर थी। ये रहे हूप्स, यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी होंगे। Straining to escape the straps, trying hard to free themselves from the chains. वो chains में बंधी हुई थी क्योंकि वो हमेशा
वो उसको आज़ादी पसंद है और वो पता नहीं किस किस को मार सकती है। स्टैंड बैक, वुड वार्न हैरी। वुड ने कहा पीछे रहना। He bent down and freed one of the vultures. उसने एक को छुड़ाया ताकि वो दिखा सके वो कैसे होता है। At once the black ball rose high in the air and then flattened straight at Harry's face. Harry swung at the wind bat to stop it, breaking his nose and sent it zigzagging away into the air. It zoomed around their heads, and then one shot at Wood, who dived on top of it, managed to pin to the ground. यानी अब जो था उसने जब उसको छोड़ा तो फिर एक ही बार में वो ऊपर गई, वो बॉल जो थी वो ऊपर गई, फिर सीधा नीचे हैरी के मुंह के पास। वो बच गया क्योंकि उसने एक वो जो क्लब से मार दिया उसको। तो फिर वो तो चली गई पर वो वापस तो आएगी ना, क्योंकि वो हमारी जैसी बॉल की तरह नहीं है, वो वापस भी आ जाती है जब उसका मन करे। तो वो जिगजैग करके वहाँ से निकली, वापस आ गई, लेकिन ओलिवर वुड ने उसे ग्राउंड तक पहुँचा लिया, उसको वापस डाल दिया। सी वुड पैंटेड, forcing the struggling buffalo back into the crate. वो हाँ उस vulture को वापस डाला था, strapping it down safely. The vultures pocket around trying to knock players off their brooms. यानी वो गिराने की कोशिश करते हैं ब्रूम्स को, ब्रूम्स पे जो प्लेयर्स होते हैं। That's why you have two beaters. बीटर्स होते हैं जो इन बल्चर्स को अपने प्लेयर्स को बचाते हैं और जो बैट लेके घूमते हैं, वो जो क्लब टाइप बैट होता है। द वीजली ट्विंस आर आर्स, इट्स देयर जॉब टू प्रोटेक्ट देयर साइड फ्रॉम द बल्चर्स एंड ट्राई टू नॉक देम टुवर्ड्स द अदर टीम, सो थिंक यू हैव गॉट ऑल दैट। तो फिर वो जो वीजली थे वो रॉन वीजली था, रॉन भी एक वीजली था जो उसका दोस्त था रॉन। फिर आते हैं जॉर्ज और उसका एक भाई, वो ट्विंस थे, वीजली ट्विंस। तो फिर वो थे बीटर, यानी उनकी जॉब थी हैरी और बाकी और कीपर्स को प्रोटेक्ट करना। Three chasers try to score with the quaffle and the keeper guards the goal post. The beaters keep the vultures away from the team. Very good. Have the vultures ever killed anyone? उसने पूछा क्या किसी को उन्होंने मार डाला है? उसने ऑफ हैंड, he sounded off. ऑफ हैंड मतलब है डिस्टर्ब। नेवर एट हॉगवर्ट्स, वो हॉगवर्ट्स में थे ना, हॉगवर्ट्स उनका स्कूल का नाम। कभी हॉगवर्ट्स में ऐसा नहीं हुआ, मतलब वी हैव हैड अ कपल ऑफ ब्रोकन जॉज बट नथिंग वर्स देन दैट। ब्रोकन जॉज, जॉज यानी हमारा वो जबड़ा होता ना, वो टूट जाता था पर मरे नहीं आज तक। Now the last member of the team is the seeker, जो था Harry. That's you, and you don't have to worry about the quaffle or the bulgers unless they crack up my head upon. यानी वो जब तक वो तुम्हारे सर के पास से निकल जाए उसको तुमसे कोई लेना देना नहीं। Don't worry, the Weasleys are more than a match for the vultures. यानी Weasley अच्छे हैं, they are a pair of human vultures themselves. यानी वो एक खुद एक तूफान थे, वो बल्जर तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी।
क्योंकि वो बहुत शैतान थे, वो अपनी मम्मी के साथ भी प्रैंक कर सकते हैं। Wood reached into the crate and took out the fourth, the last ball. Compared with the quaffle and the vultures, it was tiny, about the size of a large walnut. वो एक वॉलनट की तरह थी। जो थी अब golden snitch was bright and had little fluffy silver wings. उसमें silver wings थे। This, said Wood, is the golden snitch, and it's the most important ball of the lot. It's very hard to catch because it's so fast, difficult to see. यानी वो इतनी तेज है कि आप उसे देख भी नहीं पाओ. It's the seeker's job to catch it. You have caught the weave in and out of the chasers, beaters, vultures, and quaffle to get it before the other team's seeker. Because when seeker catches the snitch, wins his team an extra 150 points. 150 points आपको मिल जाएगा अगर इस गोल्डन स्निच को आपने पकड़ लिया. So they nearly always win. यानी जो उनको 150 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो फिर वो हमेशा जीत जाते हैं, वो टीम जो उसे पकड़ लेती है. That's why the seekers get fouled so much. तभी वो सीकर्स को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं, बीटर्स उन्हें गिराना चाहते हैं और बाकी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं. A game of Quidditch only ends when the snitch is caught. अगर स्निच आपको मिल गई तो गेम ख़त्म हो जाती है, तब ही ख़त्म हो जाती है. So it can go on for ages. I think the record is 3 months and they had to keep bringing on substitutes so the players could get some sleep. यानी वो लास्ट था 3 months का. अब सब्सिट्यूट्स यानी जैसे हमारे सब्सिट्यूट पीरियड्स होते हैं, सब्सिट्यूट्स है टेम्परेरी प्लेयर्स. सो नाउ द चैप्टर इज़ कंप्लीट. ये रहा हैरी पॉटर जिसके हाथ में है गोल्डन स्निच, और ये है वो 3 हूप्स, और ये है ओलिवर वुड, ये है ओलिवर वुड, और ये है हैरी पॉटर.